देखिए, इस पढ़ाई को कहते हैं राजसी पढ़ाई, रॉयल एजुकेशन। क्योंकि इस पढ़ाई में कोई शंका नहीं है, संपूर्ण ज्ञान एक साथ मिलता है। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जिसको पढ़िए तो सारा ज्ञान मिलेगा। आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो केवल फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री का ज्ञान, बॉटनी पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही ज्ञान मिलेगा। लेकिन जब आप क्रिया योग अभ्यास करते हैं, क्रिया विज्ञान इस तरह से अब स्वीकार करते हैं, तो इसमें संपूर्ण ज्ञान एक साथ मिलता है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, टोटल जितने प्रकार के ज्ञान की कल्पना कर लीजिए, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, शिव का ज्ञान सब मिलता है। इसलिए इसको कहा गया है राजसी पढ़ाई। और राजसी पढ़ाई करके क्या मिलता है? सच की अनुभूति। सच क्या है? योग की अवस्था। योग क्या है? दूरी की शून्यता। दूरी की शून्यता क्या है? एब्सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, समय और दूरी का अभाव। इसीलिए इस पढ़ाई को राजयोग कहा गया है। This education we are learning is called the royal pathway. A royal pathway of understanding. What does it mean? When we learn it with all devotion, then we are going to learn all things same time. Let us become professional student. We are learning chemistry, then you will have only knowledge of chemistry. You will not have knowledge of any other subject. Student of physics will have knowledge of physics alone, not medical science. Student of medical science will not have knowledge of technical education. In the university college, what subjects we are learning, when try to learn that, you will find limited knowledge also in the same subject. Any physics professor will not claim that having perfect knowledge of physics. But if you are learning Kriya Yoga science, learning of Kriya Yoga science means practicing Kriya Yoga meditation. This is called the royal way of learning. Why it is called royal way of learning? When you practice it, you get all knowledge same times. Technical education, medical education, astronomy, astrology, history, geography, philosophy, all kind of knowledge of creation, knowledge how to protect, preserve, knowledge how to make a change. In this you are going to learn all. Okay, all right, we are listening. It looks very good. But we don't understand it. Then we want a proof. How to get the proof? Therefore I recommend Autobiography of Yogi. And this Lahiri Mahasaya was able to stop train when he was in Varanasi. He was not having technical remote control, what we have today. He was not having any device and told that he will do tick, 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 and a train should stop in Howrah station. It means he was highly technical expert to do anything. Regarding the television, he was meditating, then he starts making loud noise of stress that I am drowning. Then what he saw, that he was having oneness with some people in the Japan who were drowning in the ocean. He experienced it. By seeing television you cannot experience. He experienced them. What kind of technology is this more than internet? Not only this, Ram was dead. Ram was raised from distance. He never came even to touch. And body became very tight and dead. Lips were not able to open, everything so tight. From distance, Ram was raised from death. Means highest medical knowledge. Not only this, he was able to manifest many places same time. What kind of this internet technology? It means Lahiri Mahasaya proved.
He is the best doctor, best engineer, best things in all education system. Prophecy, he prophesied that Paramahansa Yogananda, this great person, will work like steam engine. 100,000 will be carried to God. Who is having the best astrologer than Lahiri Mahasaya? This is the one proof. Same thing was demonstrated by Swami Yukteswar Giri, by Paramahansa Yogananda, by a saint with the two bodies, chapter number 3, and many others. याद रखिए कि जो हम बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, क्रिया विज्ञान पढ़िए तो सारी पढ़ाई एक साथ हो जाती है, इसलिए इसको राज विद्या कहते हैं। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ जो आपको मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए योगी कथामृत, इसमें जो लिखा गया सच है। इसको भले पढ़ करके आश्चर्य हो, लेकिन जो लिखा गया सच है। इसमें आप लाहिड़ी महाशय को लीजिए, कलकत्ता में बैठ कर के हावड़ा स्टेशन के ट्रेन को रोक देना, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं था, उसमें कंप्यूटर नहीं बना था, कोई इंटरनेट नहीं था, कैसे रोक दिया? यही नहीं, राम मर गए थे, पूरी शरीर कड़ी हो गई थी, सूख गई थी, ओंठ भी सूख गए थे। घंटों बाद लाहिड़ी महाशय ने राम को दूर से जिंदा कर दिया, छूने भी नहीं गए। ये कौन सा मेडिकल साइंस है? यही नहीं, जापान में कुछ जापानी लोग समुद्र के किनारे जहाज में जा रहे थे, डूबने लगे, डूबते हुए चिल्लाने लगे। लाहिड़ी महाशय उनकी अनुभूति करके ये भी चिल्लाने लगे, कहते हैं मैं डूब रहा हूँ, कुछ जापानियों के रूप में समुद्र में डूब रहा हूँ। ये कौन सी अनुभूति है? ये तो कोई टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर नहीं अनुभव करा पाएगा। तो क्या इतना सिद्ध करना पर्याप्त नहीं है? लाहिड़ी महाशय एक समय में कई जगह प्रकट हो गए, इतना पर्याप्त है। यही नहीं, ज्ञानावतार स्वामी युक्तेश्वर गिरी और अनुपम दिव्य अवतार परमहंस योगानंद, इन लोगों ने भी प्रूव किया। इसके तीसरे चैप्टर में द्विशरीरी साधु, उन्होंने भी प्रूव किया। ये तो टाइम टेस्टेड टेक्निक है, आप करिए, आप करते ही नहीं हैं। कोई कहते रेगिस्तान है, तो आपने कहा नहीं नहीं रेगिस्तान नहीं भाई, देखो मैंने एक पेड़ लगाया हरा है। तो कहते नहीं नहीं, पेड़ जो लगाए हैं हरा है ठीक, लेकिन है रेगिस्तान। हमने बोया पेड़ हुआ ही नहीं, हमने लगाया हुआ ही नहीं। तो पेड़ को कैसे लगा रहे थे? जड़ ऊपर करके, उसका तरा नीचे करके कैसे होगा वो? पेड़ लगाना आता ही नहीं। हमने बोया, फसल उगी ही नहीं, बोना आता ही नहीं। इसे याद रखिए, जो कहा जाता है कि हम बुरे कर्मों से भोग रहे हैं, हमारे ऊपर पाप सवार है, पिछले जन्म के दुष्कर्मों को हम भुगत रहे हैं। हम जब तक के लिए आए हैं तब तक के लिए आए हैं, उसके पहले कोई मार नहीं सकता। ये सब जो गलत शिक्षाएं हैं, जब जाना होगा तब जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। गलत कर्म किए उसको भुगतना ही है, बिना भुगते गए तो ऋण के रूप में अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। और शरीर छोड़ने के बाद जो गलत कर्म किए हैं, नरक की नदी में ढकेला जाएगा, कहीं घड़ियाल खाएगा, कहीं अजगर। ये सब जो बताया जाता है सब गलत है। ये टोटल गलत है। ये आपका अस्तित्व ईश्वर की संतान है, यही सही है। आपके अस्तित्व के रूप में आप जो हैं सब कुछ इस रूप में विद्यमान है। आप जानना चाहते ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ, अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए, आपको पूरी तरह से प्रमाण के साथ आ जाएगा। और क्या प्रमाण के सच है? सांच को आँच नहीं। वो जानते ही सभी प्रकार के कष्ट दूर भी हो जाएंगे। ये नहीं कि हमने ज्योग्राफी पढ़ा, पूरा विद्वान हो गए, कैसे सौरमंडल बना, सब पढ़ाते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर है, हमें डायबिटीज़ की गोली रोज़ खाता हूँ, तो इसका मतलब सच नहीं जानते हैं।
Sometimes we claim, yes, we are a very learned person, we know the truth. We know that how this universe came into existence. Okay, all right. If you are experiencing the truth, then you have to prove it. Anyone who is experiencing the truth have no problem of any kind. No, I am a professor. I have written the books. It's a very popular bestseller, the books. I have written Origin of the Universe. That 10,000 years before, we were barbaric life. We are living in the forest nudely, having no knowledge. We are eating only meat, nothing else. Okay, all right, if I know the truth, anyone who experiences truth is able to demonstrate absence of problem of any kind. But I am having diabetes. I am taking insulin, hypertension also. It means you are not knowing the truth. Oneness with the truth removes all problems permanently. Therefore remember, practice this sincerely, very nicely. Your deeper practice will awaken you from inside. Then in a very short span of time, you will know all scripture. आप जो गहराई में अभ्यास करेंगे, आपके अंदर एक खुल जाएगा, समझने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। और जब सामर्थ्य बढ़ जाएगी समझने की, तो आप कुछ ही घंटे में या कुछ ही दिन में सब कुछ एक साथ समझ लेंगे। बाइबल भी, कुरान भी, महाभारत भी, गीता भी, रामचरितमानस, रामायण, महर्षि पतंजलि का टेक्स्ट, कबीर साहब की शिक्षा, नानक देव जी की शिक्षा, गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की और लाड़ी महाशय की शिक्षा तो सीख ही रहे। जिसे खूब अभ्यास करिए बस। आइए आपको हम 5 मिनट अभ्यास कराते हैं।